محمود صاحب. السلام علیکم محترمہ. وعلیکم السلام. معاف کیجیے گا, کیا آغا خلیل صاحب زادہ کی کتابوں کی دکان یہی ہے؟ میں غلط تو نہیں آ گیا؟ آپ یہاں سے نیچے تشریف لے جائیے. شکریہ. خدا کے لیے محمود, دوپہر ہونے والی ہے. محمود صاحب. خدا میں ہمیشہ کے لیے سوچا ہوں کہ اتنے محمود کی آوازیں نہ سننی پڑے مجھے. اور یہ اس بھاری وزن کو یہاں تک لانے کا. شکریہ حاجی صاحب. اور نہیں چاہیے آپ کو؟ ایسی کتابوں کے گاہک نہیں آتے. میں وہی چیز بیچتا ہوں جس کے اندرونی مواد سے میں مطمئن ہوتا ہوں. کیا آپ کی نظر میں کوئی اور ہے جو مجھ سے یہ خریدے؟ معافی چاہتا ہوں, معلوم نہیں. بہت بہت شکریہ, میں آپ کی مشکور ہوں. یہ لیجیے. شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. فلسفے پہ کتاب چاہیے تو میرے پاس نہیں ہے. مجھ سے کہہ رہے تھے حاجی صاحب. فلسفہ نہیں ہے؟ مجھ سے کہا گیا تھا کہ منظومہ حاج ملا ہادی کی شرح آپ کے پاس مل جائے گی. آپ کو غلط ایڈریس بتایا گیا ہے. میرے پاس فلسفے کی کتاب بالکل نہیں ہے. میں یہ دونوں لے جا رہا ہوں. آپ نے جیسے ہی حاجی کا لفظ کہا میں سمجھا آپ مجھ سے مخاطب ہے. معاف کیجیے گا, آخر ہمیں لوگوں کو وقت دینا ہوتا ہے نا. یہاں کسی کا وقت ضائع نہیں ہوتا سید صاحب. جب آدمی ایک سے دو بار یہاں آتا جاتا ہے تو خود سمجھ جاتا ہے کہ کیا چیز اس کے اختیار میں ہے اور کیا دوسروں کی. ارے ہاں, وہ اجتہاد اور تقلید کی کتاب کی میں نے فرمائش کی تھی. حاجی صاحب, یہاں کی غریبی میں ہاتھ پاؤں کٹ کے رہ گئے ہیں. میں اس انتظار میں ہوں کہ انشاءاللہ ایک آدھ دنوں میں مجھے وہ میری دکان مل جائے. تو آپ کی یہ فرمائش کوئی بڑی چیز نہیں ہے. تو ایک آدھ دن میں دکان کھل رہی ہے آپ کی؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا, مجھے کتنے پیسے دینے ہوں گے؟ بشرطے کہ مجھ سے ہمیشہ کے پیسے ایک ساتھ نہ لے لیں آپ. آپ سے بڑھ کر نہیں ہے. میں نے یہ دونوں 15,300 تومان میں لی تھی. اب آپ جو چاہیں دے دیں. میرے خیال سے 20 تومان ٹھیک ہوں. صرف 1500 اوپر دے دو, کافی ہوگا. اگر عربی ادبیات کو ڈھونڈ رہے ہو تو تمہارے سر کے اوپر ہے. معاف کیجیے گا, مجھے کہہ رہے تھے آپ؟ ہاں میرے بچے, میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں. آپ کے اوپر الٹے ہاتھ پر. جی. فلسفے کے علاوہ آپ کو عربی ادبیات نہیں چاہیے تھی؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکرم صاحبہ, نماز کے لیے جا رہا ہوں. حاجی, افطار کے لیے جلدی آ جائیے گا, میں قورمہ بنا رہی ہوں. بہتر ہے کہ کوئی شوربے والا سالن بنا دو. ہو سکتا ہے کہ دینا آج رات تک آ جائے. اب کیا معلوم کل پہلی رمضان ہو جو دینا پہنچ جائے. ویسے سب کہہ رہے ہیں کہ کل شعبان ہے. حاجی صاحب. جی. میں کہہ رہی ہوں آج کم از کم جلدی آ جائیے گا, تاکہ اگر آپ کی یہ دینا پا جائے تو وہ بھی میری طرح ہم زبان سے محروم نہ رہ جائے. پھر گلے شکوے؟ صحیح تو کہہ رہی ہوں. میں دیکھ رہی ہوں کہ ہفتہ 10 دن سے آپ مجھ پر توجہ نہیں دے رہے. لا الہ الا اللہ. اچھا بھائی, انشاءاللہ جب لوٹوں گا تو تمہیں بھی وقت دوں گا. اب تو خوش ہو نا ہم زبان. اگر اس ہندا جگر خورا کو کوئی ہم زبان مل جاتا تو میرے سر پر سوار نہ ہوتی. اب آپ اپنی انہی باتوں سے مجھے مکھن لگا رہے ہیں. ارے حاجی صاحب, فون کی گھنٹی بج رہی ہے. آئیے, ہو سکتا آپ کے لیے ہو. میرے خیال میں وہی ہوگی. جناب السلام علیکم. صبح بخیر. وعلیکم السلام. صبح خیر. آپ کو تو ابھی اپنی دکان پر ہونا چاہیے تھا نا. آپ ہی بتائیے میں کیا کروں. میں خود بھی تھک چکا ہوں. میرے دوست کو اپنی گاڑی کی ضرورت ہے. اب مجھے بھی عصر کے بعد ٹیکسی چلانی پڑتی ہے.
मगर सिर्फ यही नहीं कि जब असर के बाद सवारी उठाना शुरू करो तो फिर जाहिर है मजबूरन आधी रात तक टैक्सी चलानी पड़ती है, ताकि कम से कम इस काम को काम तो कह सकूं। और फिर 1-2 घंटे रोड पर वक्त ज़ाया करके, जो असल में सिर्फ टाइम पास करने के बराबर है, तो अब जब थक हार के घर लौटो तो बाकी खुदा ही बेहतर जानता है। अगर मैं अपने आप को मार के भी उठना चाहूँ तो सुबह की नमाज नहीं पढ़ सकता। क्यों? कुछ पता नहीं, क्योंकि आप अपनी दुकान मेरे हवाले नहीं करना चाहते कि मैं 4 ढंग की चीज़ें उसमें डालूं, 4 पैसे आप कमा लें और 4 मैं कमा लूं। क्यों और किस बहाने की बिना पर मना किया कि वो एक 21 साला यतीमा की विरासत है? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शायद ये इबादत आपकी उन इबादतों से जो बकौल आपके खुदा तौफीक देता है और आदमी हमसे बेहतर हजरात के साथ उठने बैठने लगता है ना हो। लेकिन मैं अगर क़यामत तक भी यहाँ रहा तो तुम अपनी इन बुरी हरकतों से बाज आने वाले नहीं हो। हाजी साहब आइए, देखिए कौन आपसे बात करना चाहता है। दीना? नहीं, आपके भाई का बेटा है रामीन। क्या दुकान तैयार है? ये दुनिया हमें अव्वल वक्त की नमाज से महरूम करके रहेगी। अगर मैं आपकी जगह होता तो दुनिया के बजाय दीना कहता। भाई साहब मैंने निचली मंजिल पे दुकान किराए पर ली है और यहीं रहूंगा। मैं ऊपर जाने वाला नहीं हूं। देता हूँ। दुकान भाई से जान सामान आप अपनी कोई आवाज नहीं नीचे कर ले निकलवा प्लीज। सकता हेलो। मैंने कह दिया है मैं नीचे की दुकान पे नहीं जाऊंगा। कासमी साहब आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे मसला हमने ईजाद किया था, हम ही उसे हल करेंगे। हमारी बात हाँ सब कुछ तैयार है, सारी दुकानें तैयार हैं, बस मुझे एडवांस मिल जाए मैं पेमेंट कर दूंगा। हाँ मैंने कहा ना आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते प्लीज। बस अब मैं इस दुकान में रहूंगा, नहीं जाऊंगा। कर सकता है क्या? हल हो गया, मैं बाद में फोन करता हूँ। मैं नीचे नहीं जाऊंगा। चाचा जान, मुझे ऊपर की दुकान वाह चाहिए। वाह, ये लीजिए मुंह मीठा कीजिए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी शादी की भी मिठाई खाएंगे। दीना साहबा कासमी कैसी साहब, क्या कह रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाने वाला रामीन अरे साहब। क्यों इज्जत खराब कर रहे हैं हमारी? समझाइए ना इसे। अस्सलाम, प्लीज देख लें। माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि मैं गलत वक्त पर आ गया। नहीं, सच पूछिए तो हमें 3-4 दिन पहले आपको फ़ोन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ इतना रश था कि कर ना सके। वैसे मैं 13-14 महीनों के बाद तो इंशाल्लाह इस शर्मिंदगी से निजात पा सकता। दुश्मन शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे कामों में 10 रुकावटें आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम तमाम हुए। अच्छा ये बताओ बाबा और अम्मी कैसे हैं? सब ठीक है। अलबत्ता बाबा ने अब ठान ली है कि कोई नया तामीराती काम नहीं करेंगे। एक तो ये कि अभी एक मसला खड़ा हो गया था और फिर और भी बहुत से दर्द सर हैं। जैसा कि तुम बता रहे हो तो फिर उसके बाद उसे टैक्सी चलानी पड़ेगी। ये बताओ कि पिछले दुकानदारों में से कोई भी नजर नहीं आ रहा? क्या सबने अपनी दुकानों को किराए पर उठा दिया है? क्या बताऊं, कुछ ने बेच दी, कुछ ने किराए पे उठा दी और बाज़ अफराद ने, क्योंकि तामीराती काम ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए पहले ही अपनी ज़मीन और दुकान के पैसे वापस ले लिए। तो ये बात है। ये है चाचा जान, आइए। अब इसकी चाबी पता नहीं कौन सी है। हाँ ये है, आइए। शाहिद साहब, शाहिद जरा सा साहब। काम बाकी रह गया है। जी हाँ, क्या बिजली और रंग वगैरह मुझे करवाना होगा? सच कहूँ तो चाचा जान काम का उस वक्त इतना बोझ था सर पर, अगर आप मौका दें तो मैं खुद ही करा दूंगा सारा काम। तो कामों के बोझ में ये काम भूल गए। मैं खुद ही करा लूंगा कि क्या मतलब है? आप बेफिक्र रहें, मेरा बाबा से अलग हिसाब किताब है। खामखा अपना पाँव बीच में मत फंसाओ, इस तरह तो 1 महीना मजीद खिंच जाएगा। वैसे ही तुम्हारे बाबा ने काफी नवाजिश की है, पर छोड़ दो। रामीन साहब,
آپ کا بہت بہت شکریہ جو کام آپ نے میرے لیے کیا ہے. میری گلی میں ایک دکان تھی جو آپ لوگوں نے مجھ سے لے لی. اس کے بجائے 1.5 سال کے بعد دکان کے نام پر ڈربا مجھے دے دیا, وہ بھی نچلی منزل کا. وہ بھی ابھی شروعات میں اس کے ٹائر نکل رہے ہیں. پتہ نہیں لوہا پہ دہن سے چپکایا ہے یا انہیں کسی اور چیز سے. کیا یہی طریقہ ہوتا ہے معاملے کا؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لوہا پہ دہن سے؟ یعنی میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں یہ سب. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. ان کے ساتھ جو علامین حاجی صاحب اپنے ہی ہیں. اب آپ شب عاشور کے اعمال میں ہماری طرف نہیں آتے. اچھا تو یہ جگہ آپ نے اپنے خلیل صاحب کو دے دی ہے؟ ہاں مبارک ہو جناب, مبارک ہو حاجی صاحب. اب میں آپ کی مسجد میں نہیں آؤں گا. جب آپ جیسے سادات اور اولاد رسول کی یہ حالت ہو گئی تو پھر مجھ جیسے کو کیا کہنا. جب پانی کا ڈیم ہی بیکار ہو جائے تو پھر عوام کا کیا ہوگا؟ اپنا خاندانی نام میرے لیے جاویدیاں بنا لیا ہے. انصاف بھی کوئی چیز ہوتی. ہر جگہ پارٹی بازی, یہاں بھی پارٹی بازی. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو چچا جان آپ 1 منٹ رکیے, میں ابھی آتا ہوں. چچا کی جان یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے اسے نیچے کی دکان کیوں دی؟ میں کیا بولوں, بابا نے خود دکانیں بانٹی ہیں. یہ آدمی بھی ناراض تو نہیں تھا, بس ابھی اسے منا لوں گا. منیزہ صاحبہ یہ لو. اللہ خوش رکھے آپ کو. انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد اسے ادھر ادھر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. انشاءاللہ آپ کے ہاتھ کی دوا سے شفا ہو جائے. پانی میں حل کر کے دے دوں اسے کھانے کے لیے؟ بس اس کی دودھ کی بوتل میں ڈال دینا اور سارا پلا دینا گھول کر. ارے ہاں منیزہ, ایک اور چیز دینا چاہتی تھی میں تمہیں. وہ نظر بد سے بچاؤ کا؟ ارے ہاں ٹھیک, وہی. مگر منیزہ تمہیں قسم ہے یہ میں اپنی طرف سے دے رہی ہوں, کسی کو کانوں کان خبر نہ ملے. کچھ عرصے پہلے حضرت شاہ عبدالعظیم کے حرم میں سے ایک بڑھیا سے خریدا تھا, مگر میں نے لاکھ کوشش کر لی کہ دیوار پر لگا سکوں. حاجی نے لگانے ہی نہیں دیا. توبہ, اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ بیٹھ کے ان سب چیزوں کو سمیٹ لوں. کچھ وقت نکالتی ہوں. یہ سب کیا ہے اکرم صاحبہ؟ ایسا تو نہیں کہ تم حاجی کی غیر موجودگی میں کچھ ایسا کرتی ہو؟ ہاں ارے نہیں, ان میں سے زیادہ تر چیزیں بیکار ہیں, لیکن میں جب بھی پھینکنا چاہتی ہوں شیطان مجھے ورگلاتا ہے. سچ پوچھو تو یہ سب اس وقت کا ہے جب مجھے کچھ امید تھی کہ میں کچھ ایسے کام کروں کہ میرا شوہر مجھے طلاق نہ دے. ارے بابا, آپ کے تو بالکل ہاتھ کے پاس ہی دعاؤں کا خزانہ موجود ہے. ارے بابا, اب میری دکھتی رگ پہ ہاتھ مت رکھو. تم نے سنا ہے نا چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. اسے کہتی ہوں کہ بھائی آپ کو اولاد نہیں چاہیے, مجھے تو چاہیے نا. کم سے کم ایک دعا میرے لیے بھی کر دیں, مجھے بھی کوئی جڑی بوٹی دیں کہ شاید میری مشکل بھی حل ہو جائے. انہوں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ مجھے اپنی موت کے قریب بچہ نہیں چاہیے. مجھے پتا ہے منیزہ کہ یہ حاجی صاحب مجھے صرف کام کاج کروانے کے لیے ہی لائے ہیں. ان کی نظریں ابھی بھی پہلی بیوی کی طرف ہی ہیں, میں جانتی ہوں. یہ رہا منیزہ صاحبہ. یہ کیا ہے؟ تم نے تو کہا تھا نظر بد کا ہے. یہ ان تعویذوں سے بہت بہتر ہے جو بچے کے گلے میں لٹکاتی ہو. یہ دیکھو, میں اسے تھیلی میں ڈال کے دے دیتی ہوں. دینا نے بھی اسے دیکھا ہے. یہ اس کو سینے پہ پہنا دینا, پھر اس کی طرف جراثیم تک نہیں آئیں گے. اس کا راز اس کی بو میں ہے. اس کے بستر کے اوپر لٹکا دینا, اب جراثیم بھی نہیں آئیں گے اور اس کے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا, ہے نا؟ یہ لو. اتنا پرانا ہے کہ بو بھی نہیں آ رہی. کیا کروں بہن, جو ہے یہی ہے. واہ 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 واہ, کتنی زبردست دکان دی ہے آپ کو. میرے اندازے کے مطابق آپ کی پچھلی دکان سے 2-3 میٹر بڑی ہی ہوگی. آپ سے بڑھ کر بالکل نہیں. آپ ہی کے کاموں کے لیے ہم روزانہ ٹاؤن آفس کی بھاگ دوڑ میں لگے ہی رہتے ہیں. آپ کی چیز ہماری چیز ہے. خوش رہو. قربان جاؤں. خدا بھلا کرے. ماری جاؤں, کوئی بات نہیں, آپ سے بڑھ کے نہیں. ویسے دکان کی مالکن کہاں ہے؟ دکان کی مالک دینا صاحبہ, آپ کی پوتی. ویسے آج کل شیراز میں پڑھ رہی ہے نا؟ کرمان میں. ہاں کرمان. میرے خیال سے تقریباً 5-6 مہینے پہلے میں نے اسے آپ کے گھر کے دروازے پر دیکھا تھا. فزکس پڑھی ہے نا وہ؟
तुम वहाँ क्या कर रहे थे जो मैंने तुम्हें नहीं देखा? अपने महमूद से पूछिए। या आपका महमूद हर दफा बाबा के साथ पार्टनरशिप के बहाने मुझे आपके दरवाजे पर खींच लाता है, या तो खुद यहाँ आ जाता है। आपकी जान की कसम, नहीं मेरी जान की कसम, उसको कह दिया, देखो महमूद, तुम्हारी आंखें अंधी हो। तुम्हें याद है जिस दिन तुम्हारे बाबा ने शाही बाग के सहन को बेच दिया था और तमाम वरसा को अदा कर दिया था ताकि तुम ठूस सको? और खैर से कब हम दीना साहिबा को इंजीनियर साहिबा कह सकेंगे? तुम कहीं ना कहीं से ये सवालात घुसा देते हो कि तुम कब मेरी पोती को इंजीनियर साहिबा कह सकोगे? वो तो जाहिर है, ये तो एक बहुत ही अहम तरीन बात है। अब क्या हम अपने चचा के घर वालों की खैरियत भी नहीं मालूम कर सकते हैं? इसमें क्या हुआ? खुदा तुम्हारी मुश्किल दूर करे। जी जरूर, खुदा हाफिज। शुक्रिया। सलाम, क्या हुआ? दुकान का कब्जा मिल गया? खुदा सलामत रखे। बस आप जल्दी से दुकान शुरू कर लें। खुदा ने चाहा तो हमारी दुकान बहुत जल्दी चल पड़ेगी। ये बू कैसी है? बू? देखिए भाई, अगर आप चाहते हैं कि मैं 2 लम्हे बैठकर आपसे बात भी ना कर सकूं तो बता दीजिए। खुदा की कसम, मैंने असफन के साथ कुछ नहीं जलाया। अगर कुछ होता तो आप पहले ही समझ गए होते ना। मेरी पहले ही समझ लेने वाली ये समझ जवानों के लिए कोई किताब ढूंढने के ही काम आ सकती है, ना अपनी जात को ढूंढने में काम आती है और ना अपने जिगर के टुकड़े को। मैंने तो सालों पहले इस्तिखारा कर लिया था कि अच्छा और बुरा समझ लूं, मगर मुझ में कभी भी ये सलाहियत न थी कि इसके अच्छे और बुरे को समझने में कामयाब हो सकूं। मुझसे शादी करने के लिए जो इस्तिखारा देखा था उसके अच्छे बुरे की बात कर रहे हो ना? मैं अपनी नालायकी की बात करता हूं। अगर नाउजुबिल्लाह चून चरा करने की बात है तो मुझे अपने आप से ये पूछना चाहिए कि मैंने इस्तिखारा किया ही क्यों था कि अपनी दुकान भाई को दे दूं ताकि वो तोड़ फोड़ कर मार्केट बनाए। क्यों? अब क्या हो गया है भाई? मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता मुझसे कोई वास्ता नहीं उस बात का। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे बात करने लगते हो कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता। अगर कुछ कहना है तो बोलो। गुरूब होने से पहले मुझे महीने की आखिरी नमाज और दुआ पढ़नी है। अकरम, आज का इस्तिग़फ़ार बहुत ज्यादा है। पढ़ती हूँ। सुने, मैं कह रही थी कि अगर दुकान चल पड़े और हमारे हालात अच्छे हो गए तो क्या मुझे थोड़े बहुत पैसे जमा करने के लिए देंगे? किस लिए जमा करना है? आप इससे कोई वास्ता मत रखिए ना। फिर कोई मशद जाना चाहता होगा और तुम उसके साथ जाने के लिए बेचैन हो रही हो, है ना? भाई, अगर मौला रजा अलैहिस्सलाम तुम्हें शिफा देना चाहते तो नहीं जाना। तुम्हारी हालत ही बता रही है कि यही बात है। जी हाँ भाई, मुझे दवाओं के लिए खर्च करने हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे तो हैरत हो रही है कि खुदाया, अगर तुम्हारा इलाज डॉक्टरों से मुमकिन होता तो वो लोग उसी वक्त कर देते जब तुम मेरे घर पर आई ही नहीं थी। बस करें हाजी साहब, आप फिर शुरू हो गए। मेरा एक पांव कब्र के दहाने पर है, ये मैं 1000वीं दफा कह रहा हूँ। इससे पहले मैं ये कहा करता था कि मुझे अपनी पोती से शर्म आती है, आस पड़ोस के लोगों की सोच से शर्म आती है। जिस बच्चे के बारे में मुझे नहीं मालूम कि मैं उसके पैदा होने को देख सकूंगा या नहीं, मैं तुम्हें खुलकर बताता हूँ। मैं 1 हफ्ते से खुदा से ये दुआ मांग रहा हूँ कि मेरी आखिरी सांस से पहले कम से कम उन ढेर बेकद्र कीमत सच्चों की लाज रख के मुझे वो आईना दे दे ताकि मैं यूं ही इस दुनिया से चला जाऊं। समझ रही हो? समझ रही हूँ, जाहिर है कि मैं समझ रही हूँ। ये कोई पहली बार तो नहीं है कि हमारी बात इस नौबत तक आ जाए। यूं बातें करते हो गोया मेरा सर दीवार से दे मारा तुमने। जो भी इस घर की चौखट पे कदम रखता है वो यही पूछता है कि कूजा बनाने वाले के साथ जिंदगी बसर कर रही हो।
मैं उन्हें ये जवाब तो नहीं दे सकती कि 2 जड़ी बूटियों पर दम करके या 4 शुक्र के सजदे करने से तुम मेरी शिफा भी अपने खुदा से मांग सकते थे, मगर तुमने नहीं मांगी। अस्तगफिरुल्लाह, खुदा हिदायत करे इन दिलसोज आग लगाने वालों की। हाँ, तुम कर सकते थे मगर नहीं किया, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना लूं, क्योंकि तुम ये नहीं चाहते थे कि उस अल्लाह की प्यारी के कदमों की जगह मैं अपने कदम जमा सकूं। हमेशा यही कहते हो कि तुम मेरे घर की खैर और बरकत हो। सब झूठ है, सब झूठ है। अब इस बेचारी को कब्र से बाहर खींच लो। तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैंने तुम्हारे लिए कभी दुआ नहीं की? कहाँ जा रही हो, जानती हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन्नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून। अकरम जी। अकेली हो? जाहिर है अकेली होंगी। मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि तुम मेरे घर की बरकत हो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। बहरहाल चाह कि तुम जान लो। ये लोग किस अहम खबर के बारे में पूछ रहे हैं? क़यामत की बड़ी खबर के बारे में जिसके वाक़ होने में इनमें इख्तलाफ पाया जाता है। ऐसा नहीं है जैसा कि मुनकिरों ने गुमान किया हुआ है। वो बहुत जल्द समझ जाएंगे, यकीनन वो जल्द ही आगाह हो जाएंगे कि हमने ज़मीन को आसाइश की आगोश करार नहीं दिया और पहाड़ों को उसके ठहराव का बायस नहीं बनाया और तुमको जोड़ों में खल्क किया। यकीनन वो जल्द ही आगाह हो जाएंगे। ये लोग किस अहम खबर के बारे में पूछ रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। इंशाल्लाह आपको रमजान की बरकतें खूब मिले। अल्लाह करे कि इस महीने की बरकतें आपके दामन में भी आ जाएं। इलाही आमीन। क्या चल नहीं रहे मैं आप? किसी का इंतजार कर रहा हूँ, आप चाहिए? इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदाया मैं क्या बोलूं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों दबे होठों से लोगों को बुरा भला बोलते हैं आप? सलाम। वालेकुम सलाम। इस दफा मुझे कितना ढूंढना पड़ा। कहाँ थी? मेरा दिल घबरा रहा था। आपका वो तकिया कलाम हिंदा जिगर खोरा भूल गए आप? खुदा न करे। क्या मैं भी हिंदा बन जाऊं और आपको सबके सामने चूम लूं? ला इलाहा इल्लल्लाह। वालेकुम सलाम। कम से कम 2 मिनट तो गुजरने दो कि आदमी तुम्हारे आने पर बच जाए। जी अच्छा। अपना बैग मुझे दो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपको यकीन है कि आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम पैदल क्यों आई? सच पूछिए तो मुझे खौफ लाहक था कि आप कहीं टर्मिनल के ड्राइवर को देके अपनी कारें खैर शुरू ना कर दें। मैंने कहा अभी यहाँ आता और 2-3 किस्म और अल्तमास के जरिए आपके दिल को मोम कर देता और आप पर कुर्बान जाऊं। फौरन अपनी पोती को भी भेज देते। क्या फजूल की बकवास है। चलिए आप आइए ना। अकरम साहिबा। अकरम साहिबा। कहाँ हो हाजी? 1 घंटे से आपके लिए दस्तरखान बिछा के बैठी हूँ। मैंने इफ्तारी कर ली है मगर ना चाहते हुए। ये देखो कौन आया है। सलाम। हाय, मैं तुम्हारे चांद से चेहरे पे कुर्बान जाऊं। तुम आ गई? खुदा ना करे, रुको, हम आ रहे हैं। मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारे इंजीनियर साहिबा।
कब से मेरी निगाहें इस दरवाजे पर टिकी हुई थी कि रमजान का महीना आए ताकि मैं इस खामोश तन्हाई से छुटकारा पा सकूं। हाय खुदाया, क्या हो गया? खुदा न करे। अब मोहतरमा के तमाशे देखना। रो मत अकरम, अब भला रमजान का महीना भी कभी आगे पीछे हुआ है जो ये चाहते हैं कि एक आध इम्तिहान और पास कर लो फिर जाना? मैंने कहा अब ये बात तो करे ही नहीं उस्ताद जी। अकरम माफ करना, मैं फिर इन चीजों को तुम्हारे लिए उठा लाई। बहुत बहुत शुक्रिया दीना जान। अरे तुम तो तमाम जेब खर्ची मुझ पर ही खर्च कर देती हो। कोई इतनी खास चीज भी नहीं। मैंने उसे कह दिया कि भाई मेरे एक दादा हैं जो कि इल्मुल अशिया से बिल्कुल ही नाबलद हैं, मगर इबादतों की निस्बत वक्त और जगह के बहुत ज़्यादा कायल हैं। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि रमज़ान के महीने में ये कोशिश करूं कि उनके पास ही रहूं ताकि मेरे रोज़ों का सवाब दुगना तिगना हो जाए। अच्छा किया मेरे सर पे डाल के। तो वो मुझे आने नहीं दे रही थी। बिलाकर मुझे मजबूरन हमारे घर पे मिसाइल लगने और खुदा हाफिज़ी का तराना पड़ने का किस्सा सुनाना पड़ा ताकि वो मुझे आने दे। जब मैंने कहा कि अगर मैं ना गई तो मुमकिन है कि मेरे दादाजान उस वक्त दी हुई दुआ वापस ले लें और मेरे माँ बाप को पैगाम भेज दें कि मुझे लेने आ जाएं, तो कहने लगे ठीक है, अच्छा जल्दी चली जाओ। नहीं, गोया तुम ऐसे मकाम पर पहुंच चुकी हो कि किरमान से रूहानी परवाज करके आओ और अपने दादाजान की सोच को पढ़ लो। बहुत मजाक उड़ता है दादाजान। मैंने जितना भी चाहा कि मजाक ना उड़ने के लिए आपकी ज़्यादातर बातें अपनी उस्तानी को नहीं बताएं, मगर फिर भी मेरे पास आके कहती हैं कि तुम्हारे दादाजान ख्वाब की ताबीर बताते हैं। मतलब वो मेरे ख्वाब की ताबीर कर सकते हैं और तुम मुझे वापस आके बता दो। अरे हाँ, तुम्हारे दादाजान दुआ भी लिख के देते हैं ना, तो एक दुआ मेरी कैद से रिहाई के लिए लिख सकते हैं क्या? उस वक्त मैं समझ गई कि इश्क है। जब जरूरत पड़ती है तो लोग क्या क्या नहीं करते। फिर थोड़ी कुछ सोचते हैं कि इश्क की वजह क्या है। ये इश्क क्या है? यूनिवर्सिटी में ये चीजें सिखाते हैं क्या? माफ कीजिएगा, मुझे सुधरने में 1-2 दिन लगेंगे। अब मैं क्या करूं? मैं आज किस नस्ल में से हूं जिसकी कदम हवा में है। आप जैसे सुन्नती अफराद के खौफ व वहशत से जो अपने इर्द गिर्द की एक परख की तब्दीली पर भी हैरान हो जाते हैं, चाहे वो सबके फायदे में ही क्यों ना हो। और इस मॉडर्न दौर के लोग जो आप जैसों के खौफ व वहशत के खिलाफ अपनी सरपरी हरकतें कर गुजरते हैं और हर नज़्म ज़ब्त को ख़राब कर देता है, चाहे वो सबके नुकसान में ही क्यों ना हो। मैं फिजिक्स और कंप्यूटर के पास से उठकर आपके पास आई हूँ ताकि आप मेरी उस्तानी के ख्वाब की ताबीर बयान करें। सैयद खलील साहब, जिस उस्ताद को मेरी और आप लोगों की नस्ल के माबिन मददगार होना चाहिए था, उसने मुझे मददगार बना के भेजा। अब मैं कैसे बात करूँ, आप ही बताइए। वैसे ही तमीज़ तरीके से या इश्क वाली ज़बान में? ला इलाहा इल्लल्लाह। घबराइए मत, अभी मछली खराब नहीं हुई है। मैं तुम्हारे बोलने पे कुर्बान जाऊं दीना। अगरचे मैं तुम्हारी बातों में से एक लफ्ज भी नहीं समझ पा रही, मगर मेरे दिल को लग रही है तुम्हारी बातें। हाजी, इसे दुकान का बताना नहीं चाहते आप? ये बीच में टांग अड़ा के अपना काम दिखा देगी, समझी? छोड़ो इसे, दावेदार बन जाएगी और हमारा खेल बिगाड़ देगी। ये दुकान का क्या किस्सा है? दीना, आज इसकी चाबी मिल गई है, रामीन ने इत्तला दी है। अरे वो अनोखा आदमी अभी तक जिंदा है। दादाजान, मुझे मेरी विरासत चाहिए। देखो, मैं अगर उसे मिला तो बता दूंगा कि तुमने उसकी खीबत की है, ये पहले बता दूं। अरे लोगो, मुझे मेरा विरसा चाहिए, मेरे दादा मुझे नहीं देते। पता है तुम थकी हुई हो, अब जान के बबाल तो बनी चुकी हो, नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे मेरा दिल कब से बेचैन था लड़ाई करने के लिए। आप बात मत घुमाइए। मैं चाहती हूँ कि ग्रेजुएशन करते ही अपने मशीनी शौहर के हाथों पर उठाई जाऊँ और उसी दुकान को एक पिज्ज़ा की दुकान बना लूँ। अरे लोगो, मुझे मेरा विरसा चाहिए, मेरे दादा मुझे नहीं देते। अच्छा ना, मेरे पास थोड़ी है, संदूक में है, तुम आ जाओ, फिर तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हारे जान से चेहरे पे वारी जाऊं दीना जान। तुम घर में आती हो तो हम उन्हें मुस्कुराता हुआ देखते हैं। कोई बात तो है। कब उनके साथ कोई बात नहीं होती? अब बात का पतंगर ना बनाओ। क्या हुआ? तुमसे झगड़ा हो गया है या जब से दुकान मिली है चाचू से झगड़ा हो गया है? उसके साथ तो हुआ है, झूठ क्यों बोलूं। महमूद जरा सा पैरों की जंजीर बन रहा है। हम दोनों भी बच्चे के मौजू पे झगड़ा करके बैठे हैं। अकरम अब भी बच्चा? दीना, खुदा की कसम, वैसे भी 1 हफ्ते से उन्होंने मुझ पे तवज्जो देना छोड़ दी है।
अब जब जानमाज पर होते हैं तो गोया इस जहान में ही नहीं होते। गली में, सड़क पे, जहाँ भी हो इंसान 10 बार आवाजें दे तब जाके उन्हें होश आता है और वो नजर उठा के देखते हैं। अगर ये झूठ है तो अपने महमूद चाचू से पूछ लेना जब वो काम से आ जाए। मैं यहाँ हूँ। जब ही कहूं कि जिन्नात की आहट महसूस हो रही है। जब तक आप मेरी माँ की तस्वीर यहाँ नहीं रखेंगे मैं आपको माफ नहीं करूंगी। अब सच बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान के बाद एक और सफ़र जाके वापस आऊँगी, फिर इंशाल्लाह कोई 70-80 साल तक आपके सर पे बोझ बनी रहूँगी। खूब मालूम है परेशान हैं, इतना बता देंगे क्या बात है? पिछले हफ्ते मैंने एक ख्वाब देखा था, एक ऐसा ख्वाब जो मेरी नींदें उड़ा गया। मैं इसका मतलब समझ न सका। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। तो ये एक हफ्ते वाला मसला ये है, अब रहने भी दीजिए। ख्वाब आपने देखा और ताबीर मैं करूं? मुझे अगर थोड़ा बहुत आता है तो आपका ही सिखाया हुआ है। हाँ, कुछ चीजें मुझे याद नहीं है। असल में मैं इसलिए पूछना चाहता हूं ताकि मुझे याद आ जाए। आपको याद नहीं ख्वाब, फिर भी उसने परेशान कर रखा है आपको। रात थी, एक बारिश वाली रात। मैं अकेला था। घर के सहन में लकड़ी और आरी से कुछ बना रहा था। हाँ, मुझे याद आ गया, एक कैदियों वाली जंजीर मेरे हाथों में बंधी हुई थी। अभी मैं आरी से काम कर ही रहा था कि मैंने अपने पापा को देखा कि वो सरदाब से बाहर आए। मैंने देखा उनके हाथ में एक आईना था। मुझे कुछ कहने लगे, मैं इसका मतलब नहीं समझ सका। सिर्फ इतना याद है कि उस वक्त कोई बुरी चीज नहीं हुई। जैसे ही मैंने उस आईने को पकड़ा, मेरे हाथ की जंजीरें खुल के गिर गईं। बाबा ने आपसे क्या कहा? उनका जुमला आपको याद है? दादा जान, क्या आपको याद है आपके वालिद साहब ने क्या कहा था आपसे? इस साल रमजान में कुरान को कुछ अलग अंदाज में खत्म करना। इसकी ताबीर तो रोजे रोशन की तरह वाज़ेह है। अल्हम्दुलिल्लाह। आईना तो रोशन है। आप ही कह रहे हैं कि उसकी रोशनी आपके चेहरे पे फैली हुई थी और बारिश भी हो रही थी। बारिश तेज थी या हल्की? हल्की थी। तो फिर आपको किस बात की परेशानी है? बारिश तेज नहीं थी जो आप ये कहें कि अजाब है। हल्की बारिश रहमत होती है। इसका मतलब है ये रहमत का महीना ही है। अब बात मत बनाओ मेरे सामने। रमजान में सिर्फ वही लोग कुरान को दूसरे अंदाज में खत्म करते हैं कि जिन्हें ये यकीन होता है कि ये उनका आखिरी रमजान है। मुझे खुद मालूम है कि उनकी इस बात का मतलब क्या है। मैंने कहा कि मुझसे पूछो। उन्होंने कहा है कि एक अलग अंदाज में। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि यही हो कि कुरान को 2 या 3 बार में खत्म किया जाए। तो फिर क्या? मुझे नहीं मालूम। मैं बताता हूँ तुम्हें। अगर मैं अपना ताबूत बना रहा था तो इसका मतलब एक ही चीज हो सकती है। अभी तो आपने कहा कि आपको याद नहीं कि क्या बना रहे थे, और फिर ये भी कहा था कि आखिर में कैद की जंजीरें आपके हाथ से खुलकर गिर गई। अब इससे अच्छा कौन सा ख्वाब होगा? शुक्र खुदा। तुम्हें लगता है कि मैं मरने से परेशान हूँ, कि तुम इसे खैर से ताबीर किए जा रही हो? अगर मैं खुद ही अपने हाथों से अपना ताबूत बना रहा था
तो ये कोई अच्छी ताबीर नहीं है। आपको ये भी तो याद नहीं कि आप क्या बना रहे थे? और कुछ बोलूं? अगर मुझे अपने आप को धोखा देने वाला जवाब ही सुनना होता तो मैं एक हफ्ते से तुम्हारा इंतजार न करता। अकरम और दूसरों को सुना देता ताकि इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह सुन सकूं। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, उठो और जाओ। आपको ये याद है कि वो रात अंधेरी थी या उजाले वाली? दादा जान, लकड़ी काटना नबियों का काम है। हजरत ईसा, हजरत नूह, नजात की कश्ती बनाना, ये चीजें आपको कुछ याद दिला रही हैं? क्या बातें पूछ रही हो तुम? क्या आपको ये याद है वो जंजीरें जो आपके हाथों में बंधी हुई थी, वो जमीन की तरफ खिंच रही थी या नहीं? याद है? पता नहीं, मेरे ख्याल से या गयासल मुस्तगीसीन, या गयासल मुस्तगीसीन। लोगों का कौन सा माल मेरे हाथ में है जिसकी मुझे खबर नहीं? ऐसा मत कीजिए दादा जान, अभी तक आपको ये थोड़ी पता है कि आप क्या बना रहे थे।